hey guys, welcome to my new vlog. My name is Rahim Digger. I hope everyone is fine. So guys, as you already know that I have started the series of a vlog of my trip to Spain and Portugal, and this is one of the vlogs where I'm going to share you the packings and what I have done with the shopping, and every of such update will be there in this vlog. And there is a device update as well where I have bought the microphone, and there is one special thing that I have bought it today where I'm going to share with you later on, but which is very special, and I have bought it on my own. So definitely I'm going to share with you as well. But currently my bed looks like this. Everything has been messed up right now, but once I clean those stuff and once I start the packing, sorry, so everything I'm going to share with you as well. What kind of essential things you need to know while you are traveling to any of such countries, what do you need to take necessary, what is the important items, and every of such updates will be there in this vlog. And I bought this microphone, and one special thing which I'm going to show you later on. Why I have bought it this just because of I'm going to be start day-to-day vlog. That's my promise. And as you already know that I'm not being consistent through such a long time where I'm not vlogging. There is no vlogs for last 3 to 4 months, and finally I'm started vlogging now through this trip. But after coming through this trip, I'm going to be consistent and relevant through my videos, and yeah, I'm going to be recording day-to-day vlogs as well. I'm going to start. That's the reason I have bought such things like a microphone and other stuff. So yeah, I'm going to share with you everything once I cleaned up my bed, and yeah, stay tuned for it. And if you are new to this channel, go and subscribe it now, and do hit the bell icon for notify my upcoming vlogs, and do share, like and share this profile with your friends and family. And yeah, I'll see you guys in a few minutes. So till then, stay tuned and watch my whole vlog. So hey guys, just changed my outfit. I wore some little bit of comfortable wears for a night dress a little bit. So this is the surprise, and I'm going to unbox it. So I hope you guys are ready to guess. So what was it? It's the smartphone. Yes, it's an iPhone. I bought it just today, and I'm going to share with you what kind of iPhone. Guess it, and yeah, let's just unbox it. So as you know from the video, as you have seen in the video, I have purchased one of the well-known phone which is iPhone 16 Pro, and बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था इस फ़ोन के रिलेटेड, बिकॉज मुझे कंटेंट के लिए हाई क्वालिटी पिक्चर्स और व्लॉग के लिए ज़रूरत थी. एंड डेफिनेटली दैट्स द रीज़न आई हैव चूजन दिस फोन, बिकॉज ऑफ द मेगा पिक्सल्स एंड काइंड ऑफ लाइक व्हाट द फीचर्स दैट आईफोन हैज़ गॉट. इट्स ट्रेमेंडस. मैं 13 से शूट कर रहा था अभी बहुत टाइम से, एंड डेफिनेटली मुझे एक लेवल अप जाना था. मैं गो प्रो के लिए भी चूज़ कर रहा था कि मैं DSLR या फिर गो प्रो ले सकता हूँ, because of shooting nowadays in related to that content which hits definitely going to worth it. And but मैंने लास्ट में सोचा कि why can't I buy this phone which is related to like day to day things के लिए मेरे को बहुत काम आ जाएगा. हर जगह मैं कैमरा और वो सब कैरी नहीं कर सकता. एंड हाँ, मैंने 16 Pro ले लिया अभी. सो डेफिनेटली थोड़े बहुत वीडियोस में शूट करके डालूंगा इसके बाद. एंड हम लोग जल्दी से पैकिंग शुरू करने वाले हैं अभी. एंड या मैं आपको सब अपडेट देता रहूँगा. सो कीप वॉचिंग माई व्लॉग एंड एंजॉय इट. तो गाइस, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है. यहाँ पे अभी शूज़ और वो सब आना बाकी है, बट ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सब चीज़ें यहाँ पे है. वो वहाँ पे यश की सब चीज़ें पड़ी है, यश के सामान है, बट ये सब कुछ मेरा सामान है. तो जैसे कि आपको देख सकते हैं कि मैंने शर्ट्स लिए हैं. शर्ट्स है, थोड़े बहुत जैकेट है, यहाँ पे शर्ट्स हैं. 11 दिन का हमारा प्लान है, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा शॉपिंग कर ली है. एंड मैंने थोड़े बहुत नॉर्मल पैर्स लिए हैं. ये जीन्स हो गई वगैरह वगैरह वगैरह. सो सब कुछ आउटफिट तो आपको देखने मिलेगा. ये थोड़ा बहुत रेडी टू ईट खाना लेके जा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि अगर मुझे वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया तो उस हिसाब से के लिए ये रखा है. और चिवड़े रखे हैं थोड़ा बहुत स्नैक्स के लिए. अगर फ्लाइट में अगर भूख लग गई तो ये भी मैं लेके जाऊँगा. ये सब एक्सेसरीज है थोड़े बहुत. और
ग्लासेस एंड एवरीथिंग विल बी ओवर हियर। डॉक्यूमेंटेशन से वो सब कुछ रेडी है मेरा। ये नैपकिन लेके जा रहा हूँ। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा बेल्ट है, यहाँ पे जो भी टॉयलेटरीज हैं और दवाइयाँ और सब कुछ वो सब इसमें बैग में मैंने एक भर के रख दिया है। उसके बाद मैंने ये सब अंडरवेयर्स और ये सब है, सॉक्स हैं, यहाँ पे मैंने बनियान और वो सब ले ली है थोड़ी। कैप वहाँ पे रखी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी आना बाकी है बट डेफिनेटली। सो गाइज एज यू ऑलरेडी सीन दैट इन द वीडियो ऑलमोस्ट ऑल द आइटम्स वर रेडी। मैंने बहुत सारी चीज़ें रेडी कर ली है बट यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी है जैसे कि टॉयलेटरीज हो गए, फिर शूज़, नैपकिन्स और स्लिंग बैग्स। मुझे मेरे फ़ोन वो सब चार्ज करके रखना है, केबल्स और एवरीथिंग, ट्राईपॉड भी मैं लेके जा रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब कुछ बाकी है, वो मैं अभी ये वीडियो में नहीं दिखा सकता। मैं टाइम लैप्स चालू करूँगा तो उस हिसाब से मैं सब कुछ उसमें ही दिखाऊंगा बट थोड़ा बहुत स्पीड में होगा तो आपको सब कुछ एक साथ समझ में नहीं आएगा। बट डोंट फॉरगेट टू चेक माई डिस्क्रिप्शन। सब कुछ मैं वहाँ पे लगाने वाला हूँ एक PDF में कि मैं कितने कितने क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ, तो आपको ईजिली रहेगा ट्रैक करने में। और मैं अभी एक्यूरेट सब चीज़ें एक साथ मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत फॉन्ड हूँ क्लोथिंग को लेके। सो डेफिनेटली सब कुछ चीज़ें ऐड ऑन होगी, माइनस होगी, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएगी, तो मैं सब कुछ नहीं शेयर कर पाऊंगा बट मैं एक्सेल या फिर PDF कुछ भी बनाऊंगा उसमें सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगा और डिस्क्रिप्शन में होगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक माई डिस्क्रिप्शन। एंड या बहुत लेट हो रहा है, अभी बज रहे हैं कुछ अराउंड 11:35, 11:40 हो गए ऑलमोस्ट। तो मुझे चालू करना है पैकिंग एंड या मैं टाइम स्लैप्स चालू करूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक माई डिस्क्रिप्शन एज वेल एंड या लेट वी गो। Basically guys we're done with our all the packings. सब कुछ पैक हो चुका है बैग में as we got 20 kgs as an allowance. So basically near about 1875 कुछ हुआ है वेट, हम लोग ने अभी मेजर किया and we are leaving the 2 or 3 kg of allowance just because that might वहाँ पे क्या आ जाए, कौन सा वेट आ जाए क्या पता। So for the secure करने के लिए थोड़ा बहुत सेफर साइड के लिए हम लोग ने 1-2 kg थोड़ा मतलब कम ही लिया है। सब सामान ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ टॉयलेटरीज, ब्रश और ये सब कुछ बाकी है, ट्राईपॉड रखना बाकी है, ड्रायर हो गया, कैप हो गई, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी बहुत बाकी है। बाकी सब कुछ पैकिंग हो चुका है। चेक बैग ऑलमोस्ट रेडी है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड या और केबिन बैग के लिए हम लोग बैकपैक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो केबिन बैग है वो आई थिंक सो उनके मेजरमेंट के हिसाब से थोड़ा बड़ा पड़ेगा। सो डेफिनेटली वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट वन बट या दैट वाज इट एंड आई एम गोइंग टू पॉज दिस वीडियो एज ऑफ नाउ ओवर हियर। बट कल सुबह मैं जैसे आउटफिट चेंज करूँगा सब मैं आउटफिट के साथ सब कुछ अपडेट करने वाला हूँ टिल वी रीच टू स्पेन एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड विद द सीरीज ऑफ द व्लॉग। एंड हाँ अभी थोड़ी बहुत नींद आ रही है, एक्साइटमेंट तो है ही ये ट्रिप के लिए, नींद भी बहुत ज़रूरी है। कल सुबह हमारी 6:30 की बस है। सो हमको कुछ नियर अबाउट 4 o'clock को हमको उठना ही पड़ेगा एंड आफ्टर दैट वी नीड टू बुक द टैक्सी एंड नीड टू गो टू ग्लॉस्टर ग्रीन। सो बहुत हेक्टिक होने वाला है। यू गाइज इन द मॉर्निंग, टिल देन आई लव यू। So hey guys, we are ready. It's the next day in the morning and we are all set to go. As you can see that I'm quickly going to show my outfit as well, but for an update, we have already booked our taxi and it's coming in few minutes. And yeah, our bus is in around 6:30, so we just need to make sure that we are ready on time. So that's the reason we wake up early in the morning around 4:20. So yeah, I'll quickly show my outfit and I'll speak to you. So guys, this is what I have worn today. एक बेसिक कंफर्टेबल टी शर्ट और लिनन ट्राउज़र विथ माई न्यू बैलेंस और थोड़े बहुत एक्सेसरीज मैंने डाले जस्ट बिकॉज दैट आई जस्ट नीड टू बी कंफर्टेबल वाइल ट्रैवलिंग। काफ़ी अच्छी चॉइस थी कि मैं कुछ अच्छा पहन के जाऊँ अलग से, बट मैंने सोचा कि क्यों वेस्ट करना है कपड़े, क्योंकि वहाँ जाके बहुत सारे दिन है और वहाँ पे आउटफिट्स चाहिए होंगे मुझे। सो मैंने इसीलिए ऐसा कंफर्टेबल एकदम लाइट वेट आउटफिट डाला है। And yeah, we are all set. Our taxi is coming in few minutes. So yes, I'm very excited. Let me know outfit कैसा लगा in the comment section. Alright guys, we are all set to leave. हमारी टैक्सी आ चुकी है, अभी बस मैं जा ही रहा हूँ बाय होम। Let's go. किधर है? चला गया? टैक्सी वाला भाग गया, पहली बार पता चला। तू आया है उसके बाद ही चला गया वो। मैंने जैसे बैग उतारा ना इधर नीचे, मैं घूमा और वो निकल गया। देख लो भाई, सुबह की शुरुआत यही हो गई है। कोई नहीं, दूसरी कर लेते हैं, है क्या? अरे ड्राइवर डिस्पैच क्यों मारा बार बार इसमें? उसको फ़ोन करते हैं ना, फ़ोन करना। तो मैंने किया ना, देखी किसी नंबर पे। क्या है यार,
सुबह सुबह भी ये प्रॉब्लम। We both have worn the same jacket. Oh, okay. Yeah. Let's go, guys. They got me this present. Yeah. You're going to. Plaza Green. Yes. और भाई रेडी? रेडी भाई रेडी। हम आ चुके हैं बस स्टैंड। बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हम लोग। इट्स अराउंड 6:05 हो रहा है अभी, बट अच्छी बात भी है, सेफर साइड के लिए जल्दी भी पहुंच गए हम लोग। सो लेट्स जस्ट गो फ्रॉम दिस साइड। शॉर्टकट आगे खुला है, आ जाए साइड से आ जाए। कोई है नहीं बोलो, हमारे यहाँ होता तो बस स्टैंड तो क्या टैक्सी एरिया भी फुल हो जाता है, पर आप देखो कोई नहीं है यहाँ सुबह सुबह। और आज संडे भी है, वो भी है। हमने नेशनल एक्सप्रेस के थ्रू करवाया लंदन लूटन के लिए। हमको इफेक्टिव भी पड़ी प्राइस। हमने कितने में करवाया? 23 पाउंड ना, पर हेड 18 पाउंड हुआ हमारी टिकट को, विच इज़ इफेक्टिव। कि इतना तो चलता है, इतनी तो होती है। और लंदन लूटन है और एयरपोर्ट मीन्स ठीक ही है। अब अभी वेट करना पड़ेगा बस का, एंड आफ्टर दैट मैं आपको अपडेट करता हूँ वेरी वेरी सून कि आगे कहाँ कैसे बस में बैठ के। सो आई विल सी यू इन अ मिनट। चलो, हमको पता ही नहीं यही बस है। अभी ड्राइवर ने बोला इस ये लूटन एयरपोर्ट भी जाती है, मतलब यही थी। सो मैं अभी बस से कुछ शूट नहीं करने वाला, बिकॉज एज यू ऑलरेडी बीन सीन मोस्ट ऑफ दिस स्टफ इज गोइंग टू बी द सिमिलर, क्योंकि ये सब कुछ आपने देखा है मेरे बाकी सब व्लॉग्स में। अगर नहीं देखा तो चेकआउट करो। एंड मैं जैसे लंदन लूटन एयरपोर्ट पहुंचूंगा तब मैं आपके साथ और बातें करता हूँ एंड अपडेट करता हूँ। सो सी यू गाइस। सो गाइस, देयर इज एन अपडेट की बस आधे रूट पहुंच चुकी है एंड ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगेंगे हमें लूटन एयरपोर्ट पहुंचने में। और मुझे लगी है भूख बहुत ज़्यादा अभी, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था एंड शाम तक हमको ऐसे ही रहना है। एयरपोर्ट का फूड और ये सब बहुत एक्सपेंसिव होगा, पहले से आपको पता ही है कि बाहर जाके फिर इतना मतलब क्वांटिटी भी इतनी कम आती है और पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बना के लेके जाऊँ खाना। तो मैंने कल रात को ही पास्ता राइस, पेरी पेरी सॉस और एकदम थोड़ा तीखा सा एकदम गार्लिक और उसको ओनियन में और ये सब कट करके एक पास्ता राइस बनाया था कल रात को ही एक्स्ट्रा मेरे और यश के लिए। सो हम लोग लेके आए वो लोग हम लोग लेके आए हैं हमारा वो टिफ़िन। हम लोग अभी थोड़ा स्मार्टनेस दिखाई। यूजुअली हम लोग कैरी करते ही हैं, बट बाहर का फूड, घर का फूड हम लोग कैरी नहीं करते, बिकॉज बहुत टाइम भी जाता है और हर जगह अलाउ भी नहीं करते, फ्लाइट में भी अलाउ नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम लोग कैरी नहीं करते थे। बट इस बार लगी थी ज़्यादा भूख और सोचा कि क्यों ना बना लिया जाए, तो इसीलिए मैं लेके आया, स्मार्टनेस दिखाई। ये सब स्मार्टनेस आपको पता ही इंडियंस में होती है पहले से, और हमारे पेरेंट्स तो ट्रस्ट करते, आपको पता ही, हम तो कहाँ। ये रहा आपका पास्ता। अच्छा है कि हम लोग जैकेट लेके आए जस्ट फॉर दी सेक ऑफ लाइक, तो अच्छा भी लगा। अब हम जा रहे हैं अंदर, सो लेट्स जस्ट सी। एक बार चेक इन कर लेते हैं, फिर हमको क्या टेंशन ही नहीं बहुत ज़्यादा। एक बार टाइम पे हम लोग पहुंच जाए वही इनफ है। सो आप देख लो, ये है लूटन एयरपोर्ट। चल रहे हैं अंदर, फटाफट से चेक इन प्रोसेस फिनिश करते हैं एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू डू समथिंग एल्स। कुछ नहीं, एक्सप्लोर करना है वापस वही एयरपोर्ट।
जो पिछले साल आए थे हम लोग, जो 2024 में आए थे अल्बानिया के लिए। तो वो से पहले ना वो चेकिंग प्रोसेस और वो सब है, बोर्डिंग पास और वो ले लेते हैं। हाँ, इधर तो बहुत महंगा हो गया यार। हम लोग ने एक प्रॉब्लम हो गई कि हम लोग करेंसी एक्सचेंज करा के नहीं लेके आए। अभी प्रॉब्लम यही है कि कैश नहीं लेके जा रहे हम लोग, पर हमारे पास ऑनलाइन रेवल्यूट है, तो वहाँ से हम लोग करेंसी एक्सचेंज करके ऑनलाइन पे कर सकते हैं। बट एक बार बोर्डिंग पास और वो सब हो जाए, फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक बार देख के आते हैं कि कितना लग रहा है, क्या रेट्स चल रही हैं अभी उसकी। तो अगर मन लगे कि करने जैसा है तो फिर कर लेंगे तब के तब, अगर एक्सचेंज करना है तो, क्योंकि सेफर साइड के लिए थोड़ा कैश हो तो ज़्यादा बेटर है। चलो चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, You're not just some other girl. There's no one like you anywhere in the world. You have a strength like nothing I've ever seen. You're like a woman ripped right out of my dreams. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman look? we are all set, we got our boarding pass and बस अभी बोर्डिंग पास तो मिल गया। अभी हम उसके बाद हम जा रहे हैं, अभी वॉशरूम जाके आ रहे हैं। नहीं तो फिर हम लोग अभी जा रहे हैं कि सोच रहे हैं कि पहले सिक्योरिटी चेक करवा लें और सीधा ऊपर सिक्योरिटी चेक के बाद इमिग्रेशन और वो सब फिनिश करके फिर आराम से लॉन्ज एक्सेस या फिर कहीं पे भी बैठने की जगह हो वहाँ पे बैठ सकते हैं। हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद। बट यस, फाइनली ऑफिशियली द ट्रिप इज़ ऑन नाउ, बिकॉज ये मिल चुकी है हमको और इतने टाइम की जितनी भी मेहनत थी वो अब सक्सेसफुल होने जा रही है। So get ready for the bunch of surprises guys, सब मेरे ब्लॉग में आने वाला है, तो देखते रहना मेरा ब्लॉग and I'll update you soon. You're perfect, just like सिक्योरिटी चेकिंग अभी फिनिश हुआ। make us wait. It's time to listen to yourself right now. Make us wait. Don't even listen to these guys right now. Make us wait. Let's treasure buried deep inside right now. Make us wait. का सफर होगा सुहाना। लेट्स गो मैन, लेट्स गो। बकचोदी करो बकचोदी। आशीष और डियोन, तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, बहुत गलत किया तुम लोगों ने। तुम लोग आए नहीं, तुम्हारी वजह से अभी हमको सब करना पड़ेगा तुम्हारी जगह पे। अब तुम्हारे रेट हमें अच्छा नहीं लगेगा ना, तुम्हारे बिना मजे मारेंगे, पर फिर भी मारेंगे। तुम दोनों का मजे हम ले लेंगे, टेंशन मत लेना। पूरा पैसा वसूल करके आएंगे। तेरे भाई बहुत सक्षम है इस सब चीज में। जय गणपति गजानन महाराज। ये थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। गेट्स तो कुछ 12-18 अराउंड ओपन होने वाले हैं, तो इतना जल्दी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग रेस्ट करने वाले हैं। अभी थोड़ा खाना वाना कुछ देखेंगे। If we get a chance, we're definitely going to buy something from here, but not right now. Starlight day to night, nature's canvas unfolding so grand. In this journey we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. So guys, हमारा गेट नंबर आ चुका है, नंबर 12 है, और बस हम लोग अभी टर्मिनल की ओर ही जा रहे हैं। और वहाँ से मेरा वीडियो लेना है, याद रखना। Road, wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12:40 हो गए, और 12:50 का इनका फ्लाइट था। अभी देख लो, लाइन देख लो, एक बार लाइन देख लो। इसीलिए हम लोग ने जो कार रेंटल था उसके हिसाब से हम लोग ने टाइम पे नहीं करवाया, एक्स्ट्रा 1 आवर एक्स्ट्रा ही करवाया 6 बजे तक का, बिकॉज उसमें अगर थोड़ा भी लेट हो जाएंगे तो तुम्हारी कार गई। जो पैसे थे वो पता नहीं वो लोग कैसे रिफंड करेंगे या क्या होगा, बट
हम लोग ने 6 बजे का डाला, हमारा फ्लाइट लैंडिंग 4 o'clock का है, तो फिर भी 2 आवर्स हम लोग ने थोड़ा एक्सटेंड करके ही डाला फॉर अ सेफर साइड। तो अभी वर्थ इट लग रहा है, क्योंकि हमको नहीं लग रहा कि 12:50 को ये फ्लाइट टेक ऑफ होगा यहाँ से, क्योंकि एटलीस्ट 1 आवर पब्लिक आते ही जा रहा है, पब्लिक देख लो, आते ही जा रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा, बट फिंगर्स क्रॉस्ड जल्दी हम लोग निकले यहाँ से। भाई लोग एक स्टैंप आ चुका है, स्टैंप आ गया, तो हम घूमेंगे बार्सिलोना। अभी हो, मैं एक सेकंड वॉशरूम करके आया, फिर अपडेट करता हूँ। मुचस ग्रासियास। अभी इमिग्रेशन हो गया, स्टैंप लग गया, बार्सिलोना में एंटर हो चुके हैं हम लोग। अभी जा रहे हैं बैग कलेक्ट करने के लिए, बट मेन चीज़ बोलना भूलिएगा, लैंडिंग क्या हुई है भाई, बताओ जरा, लैंडिंग कैसी हुई भाई, इतना जोर से उसने लैंड किया हमको लगा हम गए बार्सिलोना में पैर रखते ही हम गए, पर हमारे यहाँ का लोकल बच्चा जैसे चलाता है ना प्लेन। हाँ नहीं लड़कियां जब से, ओ सॉरी कंट्रोवर्सी हो जाएगा अरे अपना पर आ गए, डन। अभी फ्लाइट नंबर के हिसाब से हमें बैग देखने जाना है, वहां पे तो नहीं है। सो फाइनली द ट्रिप इज ऑन नाउ। अभी बैग भी आ ही जाएगी, मुझे लग रहा है इतनी लेट नहीं होगी। सो लेट्स कीप चेकिंग। अरे वो तो नहीं है मेरा बैग, बैग आ गया। दिस इज माय बैग, मदरफकिंग बैग। तो अभी प्लान ये है, हम लोग अभी कार रेंटल जो हमने की है, तो हम लोग उनके पास जाने वाले हैं और उनको बोलने वाले हैं कि अगर कार मतलब अगर हो गई है, रेडी है, अगर हम लोग जल्दी है, हम लोग अभी 5 ही बजे है यहाँ पे, 5 o'clock हुआ है, और 6 बजे हमको कार लेनी है यहाँ से। उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करके अगर हम लोग को अभी दे देते हैं वो लोग तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर हमको वापस यहाँ पे 1 hour वेट करना पड़ेगा, या फिर कुछ और यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा करने के लिए। देन ओनली आफ्टर दैट वी विल गेट दी कार्स एंड एवरीथिंग, बट एज ऑफ नाउ just exploring it, and yeah, keep watching my vlog and enjoy all the way from Barcelona. So plan अभी ये है, हम लोग है टर्मिनल 2 पे और हमें जाना है टर्मिनल 1 पे for car rentals of us. कैसे जाएंगे, टैक्सी कराना पड़ेगा ना हमको। एक बार उबर करके देख कितना हो रहा है यहाँ से। हम लोग उबर ही ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकल टैक्सी तो हमें खाई जाने वाली है, पैसे ज़्यादा लेंगे और ऊपर से प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा। हमको स्पेनिश तो आती नहीं है, आती है थोड़े बहुत वर्ड्स, बट नहीं समझ में नहीं आता। बट लेट्स सी एंड कीप वॉचिंग माय व्लॉग एंड आई लव दिस व्लॉग।
हमें गोल्ड कार मिल चुकी है, गोल्ड कार का जो भी ब्रांच है ना यहाँ पे T2, अभी कार नहीं मिली है, होपफुली वो भी मिल जाएगी। इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, सब कुछ जो उनके पास उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो सब कुछ है, पर एक चीज़ नहीं है हमारे पास सिर्फ, और वो है क्रेडिट कार्ड। तो होपफुली वो लोग ना मांगे, बट लेट्स सी कि उनको उसके बगैर चल जाता है कि नहीं। लग तो मजा आ रहा है भाई। ये बार्सिलोना का एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अभी तक के लिए, जो ये है अल प्राद। मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बट ये लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल है, सो होपफुली इंटरनेशनल है। लो भाई, आते ही ट्रेजेडी हो गई। सामने देखो, एक गाड़ी वाले ने एक दूसरी गाड़ी वाले को मतलब कार लग गई, पुल से हो गया होगा, बट उसकी गाड़ी में लगी है, वो टूरिस्ट लग रहे हैं, और हाँ। जिसने मारी है वो लोकल लग रहे हाँ, तो क्या पता क्या सीन है। हम यहाँ से जा रहे हैं, हमको हमें ये सब चीज़ से दूर ही रहना है, क्योंकि हम 11 दिन के लिए यहाँ पे, और हमें हमारी ट्रिप सक्सेसफुल बनानी है। सो ये सबसे तो दूर ही रहेंगे हम। अभी चलते हैं गोल्ड कार पे, ये रहा उसका ब्रांच, गाड़ी उठाते हैं यहाँ से, और फिर आपको मैं अपडेट देता हूँ। फाइनली चलो, कार का हो गया बोझ कम। वो मैंने इसको मैंने बोला कि 144 पाउंड डाल, 140 पाउंड डाल के यूरो डाल के क्लिक कर रहा है तो कैंसिल ही होएगा ना आइटम। देख लो, ये सब है इनकी कार्स, गोल्ड कार्स, और बाजू में ही यूरो कार वाले, और इस साइड ये सब कार रेंटल्स कंपनी है। सो हमें गोल्ड कार से बहुत चीप मिल गया, तो हम लोग सब डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 234 है भाई वो वहीं पे ही है भाई। हाँ, तो कुछ ऑटो कौन सी कराई थी अपने, हम लोग ने फिएट कराई थी जो 2 पर्सन के लिए ठीक थी, और हमें मिली कौन सी देखो, और ये ऑटोमेटिक है, और ये ऑटो है। बूट स्पेस, लेट्स चेक द बूट स्पेस। वो हमारी गाड़ियां सब अच्छे से आ जाएगा। नहीं, इधर ही रखना है, अरे अंदर तो डालेगा ना, बैग ऐसे ही दिखा देगा इधर से। पर आगे अलाउड है। हाँ, थोड़ा डाल दे, आगे कर सकता है तो। भाई मैनुअल है, नहीं ऑटोमेटिक है, तो है ना। चलो कोई नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ, मजा आया। और ये पकड़, ये है उसकी डिपॉजिट रिसीट, ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, सो गेट रेडी, टेंशन मत ले, लेट्स गो। पर ये एक ही आएगी भाई। फिर हम लोग एक बार होटल जाते हैं, होटल आ जाने के बाद फिर हम करते हैं कुछ अच्छे से सेटिंग करते हैं। अभी आ जाओ उस साइड। अभी फर्स्ट थिंग फर्स्ट करना क्या है, जब आप कार रेंटल करो तो मेक श्योर कि आप जैसे ही कार पार्किंग में हो पहले उसका वीडियो निकाल लो पूरा, जहाँ पे भी स्क्रैचेस हैं वो उसका वीडियो निकाल लो, तो अगर नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो इनको पता चलना चाहिए कि ये चीज़ पहले से ही थी। सो मेक श्योर कि उसका वीडियो हो, उसके फोटोज हो, भले एक्स्ट्रा टाइम लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, बट मेक श्योर कि आप उसका फोटो और सब कुछ क्लीन और क्लियर से स्टोर करो, और बाद में उसको बता दो कि भाई पहले से ये सब है और टाइमिंग के हिसाब से। ओके, सो हम लोग पहले वो ले लेते हैं, फिर आपको मैं अपडेट करता हूँ। अभी तो हम मजे करने वाले हैं करण औजला के सॉन्ग डाल के, गणपति बप्पा मोरिया। गाड़ी गर्म है पर प्रॉब्लम नहीं है। एक अंदर भी वीडियो निकालना है क्या कि कुछ? ये गाड़ी है, चेकआउट करो। ये हम लोग ने ऐसे अभी स्टोर करके रखा है, तो एक बार हम लोग पहुंच जाए होटल, उसके बाद फ्रेश होके भले हाफ एन आवर लगे, बट एक बार अच्छे से हम लोग क्लीन विन करेंगे, एंड उसके बाद वी आर रेडी टू गो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड या विल अपडेट यू गाइस। एंजॉय माय व्लॉग।
Yes guys, we reached to our hostel. भाई हम कैसे आए हमको पता है, हमको पता है बहुत मतलब हम लोग आधे पौने घंटे से हम लोग ऐसे घूम रहे थे, 45 मिनट से हम लोग ऐसे घूम रहे थे क्योंकि यहाँ के रास्ते डायरेक्शन सब कुछ डिफरेंट है। और मेरे पीछे ही है इन आउट हॉस्टल, तो अभी हम लोग चेक इन करने जा रहे हैं फ्री ऑफ होके। हमको ये गाड़ी के बारे में भी पता करना है कि गाड़ी कौन सी डीजल है कि पेट्रोल, हमको वो भी नहीं पता। इलेक्ट्रिक तो है, हाइब्रिड भी। ये रहा इन आउट रूम्स, हमें जाना है, हमारी वो है। एक बार देख लेते हैं कि क्या है। वेलकम टू इन आउट हॉस्टल, लेट्स गो चेक इन। अभी चेक इन कर लेते हैं हम लोग फटाफट, फिर उसके बाद देखते हैं हमारा कौन सा रूम है, क्या है क्या नहीं है। बाकी ये हॉस्टल एकदम ऐसे पहाड़ एरिया में है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देखो यहाँ पे तो पूरा लैंडस्लाइड पहाड़ से भरा हुआ है और हम लोग पूरा नीचे से ऊपर तक आए, तो ये पूरा पहाड़ी इलाका है जो वहाँ से आ रहे, ये पूरा पहाड़ है और सामने भी पूरा पहाड़ जंगलों पे। तो ये बेस्ट हॉस्टल मिली हमको अभी तक के लिए। सो अभी देखते हैं अंदर जाके कि क्या क्या है क्या नहीं है। चेक इन डन। अभी हम लोग जा रहे हैं रूम में। हम लोग ने कुछ प्रॉपर्टी टैक्स वो सब भी पे किया, तो वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मैं अभी कुछ शेयर नहीं करने वाला। और अभी रेस्टोरेंट साइड ही हमारा रूम है, वो लोग ने कीज भी दे दी है और स्विमिंग पूल भी अपस्टेयर्स ही है। उन्होंने बोला स्विमिंग पूल सबके लिए फ्री है, तो बाय एनी चांस हम शायद जा सकते हैं अभी। और या प्रॉपर्टी कैसी लगी वो कमेंट में बताना, और सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या रेट था क्या भी है वो सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और अभी जा रहे हैं हम लोग रूम देखने के लिए कि कैसा दिख रहा है, वो सब कुछ मैं अभी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो या कीप वॉचिंग इट एंड आई विल शो यू आउट। गाड़ी किधर लगानी है? नार्कोस में दिखाते नहीं है कोलंबिया में। ये रेस्टोरेंट साइड है इनका, लुक एट द व्यू गाइस। इसका पैसा दिया हम लोग ने। अभी चलते हैं अंदर रेस्टोरेंट, ऊपर स्विमिंग पूल है इनका। तो बेसिकली देखते हैं हम लोग स्विमिंग पूल के लिए हम लोग कभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि आइटनरी के हिसाब से हमको बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी है। वो शायद हम स्विमिंग पूल देखते हैं, उसका टाइमिंग अगर रात को हो जाता है तो रात को भी हम स्विमिंग पूल जा सकते हैं। स्विमिंग करके फिर सीधा सो जाएंगे। सो लेट्स सी, अभी प्रॉपर्टीज चेक करो। लकीली ये बंक बेड मिले, यहाँ पे नीचे एक और ऊपर एक, और सॉकेट भी है वहाँ पे, एक्सटेंशन लगा देंगे हम लोग रात को। तो ये है हमारा बेड। क्लोजेट भी दिया है, और क्लोजेट में एक पॉइंट है कि 2 यूरोज़ का कॉइन डालना पड़ेगा, फिर ही जाके आपकी ये कीज़ आपकी निकलेगी। तो वैसा कुछ है यहाँ पे। और एक बार व्यू देख लो। और ऐसे बहुत सारे रूम्स हैं, सब में अलग अलग डॉर्मेटरीज हैं। और ये है कॉमन बाथरूम। अभी तो वही लग रहा है, न्यू ही लग रहा है, मतलब क्लीन है अभी तक के लिए। वॉशिंग मशीन भी है, बट एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है। ड्रायर है शायद वो। टॉयलेट भी अच्छा खासा है, नहाने के लिए भी अच्छा खासा है। सो लाइट भी चल रही है, सो नॉट बैड एक्चुअली। और ड्रायर वगैरह भी है, सब अच्छा है, ठीक है, मतलब नॉर्मल है। हम लोग अभी फ्रेश होने आए हैं, अभी देखते हैं हम लोग फ्रेश हो जाते हैं एक बार, फिर उसके बाद हमको निकलना है और बाकी सब सिटीज़ और सिटी जोन में जाके एक्सप्लोर करना है। तो अभी देखते हैं हम लोग कहाँ जाना है क्या करना है करके। पहले एक बार हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं तो थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाते हैं, फिर उसके बाद फ्रेशन अप होकर सीधा हम लोग निकल जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के मजे लो, प्रॉपर्टी देख लो पहले। ये थोड़ा डाइनिंग एरिया जैसा बना के रखा है ये लोग ने। अभी नीचे जाते हैं, एक बार चेक करते हैं, क्योंकि हमको स्विमिंग पूल का भी पूछना है कि स्विमिंग पूल कब से कितना टाइमिंग के हिसाब से होता है। तो अगर पसंद आया तो हम लोग स्विमिंग पूल भी जा सकते हैं। सो चेक दिस प्रॉपर्टी आउट।
What a property, guys. ये रेस्टोरेंट है इनका मेन। भी चलते थोड़ा नीचे घूम के आते हैं, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है प्रॉपर्टी में। बस समझ में आ गया तो फिर क्या ही है। बाकी ठीक है, अभी के लिए मेरे को ठीक भी लग रही है प्रॉपर्टी, इतना भी अच्छी भी नहीं है, मॉडरेट है ऐसा बोल सकते हैं। पे हमें ऊपर जाना है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे सिटिंग एरिया भी रखा है ये लोग ने, तो शाम को आके हम यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। होपफुली ओवर क्राउडेड ना हो, आज संडे है। बट पहले चेक करके आते हैं स्विमिंग पूल का टाइमिंग्स क्या है वो सब। सो ये रहा स्विमिंग। कभी भी हम लोग शायद जा सकते हैं, हमको आइडिया नहीं है अभी तक, बट ये वो एरिया है, यहाँ पे हम लोग बैठ के चिल कर सकते हैं। लग तो अच्छा रहा है, बाहर भी जा सकते हैं कि नहीं आइडिया नहीं। ए यश, ये रहा देखो स्विमिंग पूल एरिया, एंड ये बास्केटबॉल कोर्ट भी है। तो इतनी कम प्राइस में इज़ वेल इन गुड, एंड या मुझे तो अच्छा लगा ये प्रॉपर्टी। यहाँ पे बैठ के हम सोशली बैठ भी सकते हैं, यहाँ पे किचन के लिए सिटिंग एरिया भी रखा है ये लोग ने। सो यस, वेरी नाइस। कोई टाइमिंग ऐसा कुछ अप्रोप्रिएट लिखा नहीं है, बट हम लोग जाएंगे हमारे हिसाब से, अगर हमको टाइम मिल रहा है। अगर नहीं हो तो कल सुबह हम लोग जल्दी उठ के स्विमिंग करने भी जा सकते हैं, तो ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हेक्टिकनेस भी नहीं है हमको इतनी। बस हमें ये है कि हमने जो आइटनरीज बनाई हैं उस हिसाब से हम लोग फॉलो करें, हर चीज़ को एक्सप्लोर करें, वर्थ इट हो ये ए ट्रिप। सो दैट्स द रीज़न आई एम नॉट गोइंग राइट नाउ टू द स्विमिंग पूल। सो बाकी ये प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी सिर्फ हमको जाना है कार के पास हमारा फेस वॉश लेने के लिए, तो फ्रेशन अप होके सीधा हम निकल सकते हैं। सो गाइस, हम फ्रेशन अप हो गए और थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया, मतलब नॉर्मल जो स्नैक्स होता है वही खा लिया अभी के लिए। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, गौतिक क्वार्टर्स करके है, और हम लोग सिटी साइड ही जा रहे हैं, जो सिटी सेंटर होता है यहाँ का, डाउनटाउन बोलते हैं, तो वहीं पे ही जा रहे हैं। थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले आज रात को, तो आइटनरी के हिसाब से थोड़ी बहुत प्लेसेस नियर बाई है, तो वहाँ जाने वाले अभी। फिर थोड़ा घूमने का प्लान है अच्छे से, और उसके बाद हम लोग ने सोचा है कि कुछ खाना बाहर से ही खा लेंगे। यहाँ होटल में है अच्छी चीज़ें, बट मुझे नहीं अप्रोप्रिएट लग रहा, बट देखते हैं अभी क्या करना है। हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर डाउनटाउन जा रहे हैं, वहाँ पे गौतिक मीटर क्वार्टर्स है, फिर अल्बॉन स्ट्रीट है, सो वो सब नाइट व्यू एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स जस्ट गो। देखा ये रास्ते से आ रहे थे हम लोग, और आपको एक जादू दिखाऊंगा, एक सरप्राइज आपके लिए। पूरा बार्सिलोना दिख रहा है, पूरा का पूरा बार्सिलोना, आप देख सकते हो। ये व्यू है, ये व्यू चल रहा है, और हम अभी यहाँ पे। अपनी तो गाड़ी भाई ये है भाई, तू देख रहा है बार्सिलोना। सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए। सो ये कार भी हमें यहाँ पे स्पॉट हुई, हम लोग नीचे ही जा रहे हैं वहाँ से। हम लोग बस इसी व्यू के लिए रुके थे यहाँ पे, बट हम लोग वापस नीचे हम लोग नीचे जाने वाले हैं अभी, तो बस गाड़ी में बैठते हैं और नीचे चलते हैं। हाँ जगह है, जान दे, बहुत जगह है। व्यू एंजॉय करो गाइस। एक बार व्यू देख लेते हैं यहाँ से कैसा लग रहा है। ये यहाँ उस साइड जाना है हमको, बट हम लोग ये व्यू एक बार इधर से देख लेते हैं। वो देख रहे हो, ये सिटी है पूरी बार्सिलोना,
और यहाँ पे सनसेट हो रहा है अभी। भाई साहब अगर आप देख रहे हो तो ये सब सिटीज़ हैं यहाँ पे। देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि ऊपर से व्यू कैसा आ रहा है। मुझे नहीं लगता ऊपर कोई है उस साइड कासल पे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऊपर देख सको तो ये गार्डन है, ये कासल का गार्डन है और उस साइड केबल कार्ट है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ केबल कार्ट वर्थ इट है कि नहीं। तो एक बार देखते हैं हम लोग कि उसमें जाने जैसा है और कितने यूरोज़ लग रहे हैं। अगर नॉर्मल 30 के अंदर आ रहा है, 20-30 के अंदर, तो डेफिनेटली हम लोग वो कर रहे हैं। बट लेट्स सी कि कैसे व्यू आता है, क्या है। एंड एक बार जाते हैं ये कासल में भी देखने के लिए। एक बार ये व्यू चेक करो, वाओ। यहाँ पे लोग पिज्ज़ा खा के एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हो नीचे पोर्ट है, शिप और ये सब, और हम यहाँ पे खड़े हैं। सो डेफिनेटली वो चीज़ तो वर्थ इट है ही। मैं भी अपने आप को कैप्चर कर लेता हूँ, कैप्चर करना ज़रूरी है। वहाँ पे आज कितना दूर गया होगा पर यहाँ से व्यू है, देख लो ये पोर्ट। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। चल आजा, एक बार ये देख के आते हैं ये कासल कौन सा है। ये कासल तो देखना, और सनसेट भी हो रहा है। केबल कार्ट देखना है क्या? देखते हैं हम लोग, केबल कार्ट जाना ही है। देख के तो आते हैं कि कैसा है। ये कासल मुझे लग रहा है बंद है। ये कासल ऐसा कुछ दिख रहा है अभी, पर हमें लग रहा है ये बंद होगा। और व्यू उस साइड भी है, एक बार व्यू उस साइड भी हम देख के आते हैं कि कैसा व्यू है। एक बार ये कासल चेकआउट करो, वाओ। ये है कासल ऑफ मोंजीत समथिंग लाइक दैट। मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, पर ये अभी बंद है। ये अभी कासल आज संडे है शायद, तो आई थिंक सो उसकी रिलेटेड ही होगा, कुछ बंद होगा। बट हाँ, व्यूज़ तो अच्छे हैं। पूरा माउंटेन पे बना है ना, इसीलिए वो व्यू अच्छा आ रहा है। एक और एक व्यू देखने जा रहे हैं, अगर वो वर्थ इट होगा तो देखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग जा रहे हैं केबल कार्ट करने के लिए। अगर केबल कार अच्छा आएगा, क्योंकि अभी सनसेट हो रहा है तो अभी सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो ये है वो व्यू। ओह, दिस इज़ द बिगेस्ट पोर्ट। मतलब ये पोर्ट है बड़ा सा। ये शायद इंटरनेशनल पोर्ट लग रहा है मुझे, स्पेन का। ठीक है, ऐसा ही बीच होगा शायद। बीच पे भी जाने वाले, कल जाने वाले नहीं, कल हम लोग जा रहे हैं बीच पे। बार्सिलोना का बीच है। ठीक है, चलते हैं अपने केबल कार्ट। तो अभी केबल कार्ट का एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। देखते हैं अभी वो उसका अगर 30-35 यूरोज़ हुआ तो वो वर्थ इट है जाने के लिए। अरे वो कितने सालों पुराना होगा। सो लेट्स गो एंड लेट्स फाइंड आउट द एक्चुअल प्राइस। सॉरी गाइस, आज एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो क्लोज़ हो चुका था। 9 o'clock ही बंद हो गया था और अभी 9:17 हो रहा है। सो हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। कुछ वो गोथिक क्वार्टर्स करके जो है वो, और एल्ब्रॉन करके एक स्ट्रीट्स है, डिस्ट्रिक्ट स्ट्रीट्स वॉक है। तो नाइट वॉक वहाँ पे बहुत फेमस है, वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग अभी। आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल, दिमाग खराब होता हुआ था। ये बार्सिलोना में कोई भी सिटी में जाओ, कोई भी मेन सिटी में जाओ, तुमको कार पार्किंग मिलेगी नहीं। हमको कार पार्किंग मिल ही नहीं रहा था कितना टाइम से। फिर हम लोग ने जिगजैग लेन था उसके ऊपर लगा के छोड़ दिया लास्ट मोमेंट पे कि 1 आवर में हम लोग वापस आ ही जाने वाले हैं। तो हम लोग ने इतना कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, फिर छोड़ के रख दिया क्योंकि वापस अभी 10 हुआ है
रात का टाइम है और वापस हमको घर कुछ 12 बजे से पहले पहुंचना है। सो अभी हम लोग अल्बॉन स्ट्रीट जा रहे हैं। ये अल्बॉन स्ट्रीट ही है बट जो मेन है वो आगे से है, तो देखते हैं अभी आगे जाके। ये है थोड़े बहुत कैफेज यहाँ पे, बट अब सो पिज्ज़ा 2 लिया हम लोग ने लार्ज और चीज़ी है ये और पेप्सी। यश वॉशरूम में गया है तो मैं भी फ्रेश होके आ गया। अभी हम लोग बाहर ही बैठ के खाना खाने वाले। पहले तो हमें ये लगा कि हमें ये इंग्लिश में बात करेंगे कि नहीं, वही समझ में नहीं आ रहा था, बट लास्टली उनको पता चल गया कि इंग्लिश में बात करना है तो इंग्लिश में बात कर रहे थे वो। तो फाइनली हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं अभी के लिए, बट डेफिनेटली विल गो टू गोथिक क्वार्टर विच इज़ अराउंड 8 to 9 minutes and after that going to Elburn Street which is just near about 9 minutes. So after that we are going to jump back to our home. So अभी के लिए खाते हैं, भूख लगी बहुत ज़्यादा। चलो बाहर चलते हैं, आ जा भाई। वो तो नाच रही थी पता है बाहर आके। कौन? अभी बैठते हैं, खाते हैं, भूख लगी बहुत ज़्यादा। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलो गाइस, पिज्ज़ा खा लिया हम लोग ने। अभी थोड़ा बहुत काफ़ी हिस्टोरिक वाइब दे रहा है। देखते हैं स्ट्रीट्स आ तो चुके हैं हम लोग। भाई मैच चल रहा है। देखो मस्त बैठो आराम से, जिंदगी का पूरा मजा लो, क्या ही चाहिए और भाई। अभी तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये एरिया, बट देखते हैं अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर और करने वाले। अभी 10 मिनट पहले लग रहा था कि घर जाते हैं, हाँ अभी लग रहा है कि यहीं रुकते हैं। हाँ, पर अभी देख रहे हैं हम लोग और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ये एरिया। कल तो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि कल तो सुबह से है। आज हमारे पास 2.5 hours ही था, बट स्टिल वी आर गोइंग टू गेट इट थ्रू, सो कीप एंजॉयिंग इट। मुझे इसका कोई हिस्ट्री नहीं पता, मैं कुछ लर्न करके नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एंजॉय करने आया हूँ। ये तो अच्छा है कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, बाकी मेरा कोई मन नहीं था, मैं सिर्फ घूमने ही आना चाहता था। बट हाउ इट लुक्स लाइक गाइस, देखो। ये मुझे ये लग रहा है, इसमें ऐसा लिखा है पलाऊ दे जनरल लीलात। इसकी हिस्ट्री मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जनरल का मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से का कुछ है, गवर्नमेंट का क्वार्टर लग रहा है मुझे ये। और यहाँ पे ये कुछ, ये भी मेरे को सामने भी वही लग रहा है, कुछ म्यूजियम टाइप लग रहा है मुझे। ये वाला जो है वो म्यूजियम टाइप लग रहा है, बट हाँ ये कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर जगह लग रही है मुझे क्योंकि बहुत रश है यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये सिटी सेंटर के अराउंड ये क्वार्टर पड़ता है। ये एरिया बहुत अच्छा है और थोड़ा क्राउड देखने मिल रहा है, संडे है फिर भी। सो हाँ, मैं थोड़ी देर यहाँ पे कुछ फोटोज़ और रील्स थोड़ी बहुत बनाने वाला हूँ, थोड़ी बहुत मेमोरीज के लिए। बट डेफिनेटली ये अच्छी जगह है, मस्ट विजिट दिस प्लेस। आई थिंक सो बार्सिलोना कैथेड्रल भी यहाँ कहीं नज़दीक में ही होना चाहिए, बट मैं अभी एक बार मैं मैप्स में सर्च करता हूँ कि नज़दीक में ही है। अगर नज़दीक में होगा तो श्योरली मैं जा रहा हूँ वो देखने के लिए अभी।
लोग जा रहे हैं बार्सिलोना का कैथेड्रल देखने। हम ऑलमोस्ट पहुंचे गए। हमको लग रहा है ये जो पीछे आप देख रहे हो वो यही है, कैथेड्रल ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो कैथेड्रल। सॉरी, वो लाइट की वजह से थोड़ा बहुत अच्छे से देख नहीं पाओगे आप लोग। बार्सिलोना ऑफ कैथेड्रल। आगे चलते हैं। दिस इज हाउ बार्सिलोना कैथेड्रल लुक्स लाइक एट नाइट। बट कल हम लोग ट्राई करेंगे सुबह आने को। अगर हम लोग ये एरिया में होंगे तो डेफिनेटली हम लोग आएंगे सुबह देखने के लिए, क्योंकि 12 तो ऑलमोस्ट बज चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करके वापस रिटर्न हो रहे हैं हम लोग। सो लेट्स सी। सो गाइस, हम लोग वापस रिटर्न जा रहे हैं, घर के लिए निकल रहे हैं हम लोग। एल्बन स्ट्रीट हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अराउंड 12 तो बज ही गए हैं, ऑलमोस्ट 12 o'clock हो चुका है यहाँ पे। एंड कल सुबह हमें वापस बार्सिलोना के लिए रिटर्न जाना है। सो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे आज के लिए। अगर कल चांस मिलेगा, अगर कल कुछ ऐसा होगा तो हम डेफिनेटली आने वाले हैं इस साइड, क्योंकि सुबह अगर रात की लाइफ ऐसी, मतलब नाइट लाइफ इतनी अच्छी है, सब लाइट्स के हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो डेफिनेटली कल हम लोग कंसिडर करेंगे, हम लोग आएंगे कल भी। सो अभी के लिए मैं आउटरो कर रहा हूँ, ये व्लॉग यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहा आगे व्लॉग करने के लिए, क्योंकि आज का व्लॉग यहीं पे फिनिश हो रहा है। कल वापस नए सिरे से नई सीरीज़ का डे 1 इन बार्सिलोना होगा। सो कल हम लोग डे बाय डे और आइटनरी बाय आइटनरी हम लोग जाएंगे बार्सिलोना को विजिट करने के लिए। एंड कल का प्लान हमारा यही है कि हम जितना हो सके इतना जल्दी सुबह ट्रैवल कर लें और यहाँ पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर पार्किंग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे मिल नहीं रहा है अच्छे से। सो कल का टारगेट यही है कि पहले हम लोग आ जाएं, फिर उसके बाद एक ही जगह पार्किंग रख के फिर हम लोग घूम लेंगे, क्योंकि सब कुछ नियर बाई है। जैसे डाउनटाउन होता है वैसे नियर बाई है सब कुछ। सो अभी के लिए मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आउट दिस वीडियो, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डू हिट द लाइक and do hit the bell icon as well for notify my upcoming vlogs. So yeah, that was it for the day, half day in Barcelona. But definitely कल अच्छा सा एक vlog, बड़ा सा vlog आने वाला है। So all thank you for watching out till here, and I'll see you guys tomorrow in the morning. Thank you for watching it. Love you. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. जो जानते नहीं उनको भी लगूं familiar, बना मैं शक से नहीं बेशक करूंगा clear।